Which is your favorite aircraft and why? See, Mirage is my favorite aircraft because I have flown it the most and I have done Balakot strike. I was able to participate in that aircraft and it's actually a beautiful aircraft. It's a fly-by-wire. It has the weapons a pilot needs to, get to its target, destroy the targets. And it's a very thoughtfully designed aircraft. People say that it is a aircraft designed by pilots for the pilots. So, advanced version of Mirage is, you can say, Rafale. And French machines are good. So that is one of the most best aircraft I have flown, and I like that aircraft. Other than that, Hawk is also good, which the aircraft in which I was instructor. That's also good. Okay, so is that why Fram decided to upgrade Iran rather than the current way? I don't think it is. Rafale is better than upgraded Mirage. Rafale is better than upgraded Mirage, but as a country who is buying aircraft from some other country, it ends up to be very expensive. So you would rather upgrade an earlier aircraft with the weapons because finally the aircraft is all about how effectively it is able to destroy the target. You are using it for destroying the enemy targets only, no? There is nothing, nobody uses it for the fun of flying. So from that angle, it ends up to be cost effective, and you have a capability which you have upgraded to a higher level. That's how we upgrade aircraft. And Rafale is better than Mirage upgrade. Mirage upgrade is also good. Yeah. Sir, in operations, I know the area is very broad. They had some hammer besides they know it. the territory of Pakistan. Still now we are getting the operation that we are not kind of policy. What is your 5 Rafales. See, I don't think it's disclosed that how many aircraft have been lost. But if you have been hearing the DGMO briefings, 530, in that DGAO, Air Marshal Bharti told that we have lost aircraft and we are not interested in what we have lost in the uh, conflict like this. Losses are there. What is of importance is that all pilots have come safely. Everybody is safe. Everybody has come back home. Okay. That means that we had losses, but there is no loss of life. Pilots have not been lost. So that statement itself tells that aircraft have been lost. Now, how many aircraft, which aircraft, that has not been told. अगर वो बता भी दे तो उससे फायदा क्या है? किसका क्या फायदा है? It's just a spicy news for people. ठीक है? तो that when Air Force has to tell, it will tell. If it doesn't have to tell, it will not tell. In next war, will you have Rafales? Yes, we'll have Rafales. If you have Mirages and Su-30s, you'll have. तो क्या जा रहा है अपना? है ना? तो उसमें numbers and all these are for gossip value. What we had to do, we did. ठीक है? पाकिस्तान ने भी बताया क्या उसके कितने जहाज गिरे. So they have been following this tactic since, and it's generally done to keep the morale of the people high from Pakistan side. Otherwise, they called for ceasefire, and it is evident that they had very good amount of losses because of which they only called off the these strikes and attacks which they were carrying out, because they were the retaliation which we were giving, they were too heavy for them. You know? So have you ever ejected? No, thankfully. It causes a lot of injury, back injury and all, ejection. So have you done any nuclear exercises with other countries? Whom do you rate as a country wise? With other countries, I have not done, because these opportunities are not everyone gets this opportunity. Within the country, we have done lot many exercises with our own forces, but with other air force, generally people go for red flag, and that also we do with our friendly foreign countries also only. So if you see in terms of exercise and all, which countries are better, definitely European countries are very good in terms of their tactics and all. They only started these aircraft, they made these aircraft and they have been flying since a long time. And they have their own tactics. We also have our own tactics. Our Air Force also matches up to them in every way. Okay. And tactics are also governed by the kind of aircraft you have and kind of weapons it has. So tactics also differ from aircraft to aircraft. When an engagement happens, when the war happens, then you realize whether you were successful or your tactics are good or not. So whichever
exercises people have gone from Indian Air Force, I have got the same inputs that other Air Force is also good, we are also good. Some people are better off because they have most of the equipment from their own country, so they are able to manage and fight better. They have more things. It's like somebody has a car which has 20 kind of features, and your car has 15 features, so you'll definitely have a better road trip, isn't it? So it's something like that. So it's a good answer. But you well at the time the academic building was you were also Which year was that? 2002, which earthquake that affected the building. Okay. What? No, I left in 1998. So it is because of that they made new school building. This was, I did not know, because I studied in the old school building only, and the new school building had not come up by the time I left. But I saw that old school building was already getting deteriorated. It was built in 1960, and because of the sea beach close by and that saline air, the buildings rust faster. The rods and metal structure inside rust faster, and they start deteriorating. So from which squadron you belong with India's? In India, I was in Mike, Mighty Mustangs. Mike's gone. Sir, as for candidates for all this, you have seen many units in Spartan Air Force. So to join armed forces, what is the basic components required for candidate? See, I told you, I'm sitting in front of you. I told that I did not get selected in first and second attempt, and third attempt I got selected. So, what would have changed in me? To cut it short and put it simply, that what I demonstrated in first, second, and third attempt was different. That's how I got rejected in two and got selected in third, isn't it? So it is demonstrative thing. That interview is demonstrative thing. आपको अपने अंदर जो है वो दिखाना है. जब दिखेगा तो वो सिलेक्ट कर पाएंगे, है ना? अगर नहीं दिखेगा तो उनको पता नहीं आप में वो है कि नहीं. Clear? They will not come to know. So that is one thing, that it should be whatever you have should be demonstrated. Now, what should be there? I covered some of the things before when I said that what kind of life you're looking forward to. Whether you like discipline, whether you are organized, whether you are team man, whether you give priorities to people around you, whether you have situational awareness, not very focused, but can look at everything else also. How many of you have appeared for SSB till now? You have not appeared. So those who have appeared, you know that what kind of exercises they give you. Most of them are in team. Only psychological test is individual and interview is individual. बाकी ज़्यादातर चीज़ें टीम में होती है ना. और साइकोलॉजी में भी वो जब देखते हैं तो क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं कि ऐसी सिचुएशन आई तो आप क्या करोगे, वैसा सिचुएशन आया तो आप क्या करोगे, है ना. एंड दैट सिचुएशन, दी सिचुएशंस आर दैट देयर आर 2-3 थिंग्स. और फ्रेंड्स के ग्रुप में हो या कहीं पे जा रहे हो और कुछ एक प्रॉब्लम हुई तो उसको कैसे सॉल्व करोगे. सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो गया, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया, कुछ भी हो गया तो ठीक है. तो दीज आर दी बेसिक क्वालिटीज. वो क्वालिटीज की लिस्ट लेकर कोई फायदा नहीं है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट these qualities are very simple, that you should have ability to work in the team, and you should have common sense, you should have basic intelligence, you should have leadership qualities. What are leadership qualities? Leadership qualities is nothing but ability to work in a team. Sometimes you should be subordinate, sometimes you will be leader, sometimes you will be above, you will have seniors also, junior also. So you should be able to work as a subordinate also and as a leader also. You should be able to prioritize your task. अगर 5 टास्क हैं, किसको प्रायोरिटी देनी है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं उसमें. और ये डेली एक्टिविटी हम लोग करते हैं, ठीक है. सो बेसिकली ए बैलेंस पर्सन, नॉट वेरी इंटेलेक्चुअल इन वन डायरेक्शन. Even if he's intellectual in one direction, balance is more important. कॉन्फिडेंस होना चाहिए. पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, दैट यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट योर थॉट. जो आप सोच रहे हो वो बता पा रहे हो अपनी टीम को, तभी तो लीड कर पाओगे ना. इफ यू हैव ए टीम, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स. व्हाट आई एम सेइंग इज हाँ, तो यू कैन नॉट से दैट एंड मास्टर ऑफ ऑल्सो इज ओके, बट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब अपनी खुद की पर्सनालिटी के ट्रेड्स जो है ना उसका बारे में पता होना चाहिए. इमोशनली बैलेंस्ड, नॉट वेरी डिसबैलेंस्ड. फालतू में गुस्सा हो जाए, इमोशनल हो जाए, वैसा नहीं चाहिए. शुड बी एबल टू सी थिंग्स लॉजिकली. ये बेसिक चीजें हैं जो आप किसी से भी एक्सपेक्ट करोगे.
वही है वहाँ पे, ठीक है, वैसा ही चाहिए. Because you are going to lead people and government is going to invest a lot of money on you. They are going to give you lot many expensive things to fly or to operate in army or navy. And lot many people will be working under you whose life will be dependent on you. So what kind of person you should be? जैसे आप राजा को सोचते थे पहले वैसा होना चाहिए कि भाई बैलेंस हो, सबके साथ रह सके, सबका ख्याल रख सके, प्रजा के बारे में सोचे, है ना. तो इसे प्रजा नहीं है, आपके साथ नीचे काम कर रहे हैं लोग, है ना. सो दोस आर द बेसिक थिंग्स एंड इसी चीज़ों को वो चेक करते हैं. और इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें दिखा पाओ, ये सारी चीज़ें पॉसिबल निकल आए, कुछ कुछ गड़बड़ भी हो जाती हैं कभी कभी. दैट्स व्हाई पीपल फेल्स. और क्या ऐसा चांस है कि कोई जिसमें क्वालिटीज़ है ही नहीं वो जा पाएगा? बहुत कम, मैं तो कहूँगा, मेरे ख्याल से बहुत कम होता है. इसलिए वो इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू रखते हैं 4-5 दिन का, है ना. सो दीज क्वालिटीज यू विल इजीली फाइंड, बट टू पुट इट ब्रॉडली, मतलब लेमैन के शब्दों में समझो तो आपको जो चाहिए किसी लीडर में वो चाहिए उसमें, है ना. रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, डरना नहीं होना चाहिए. डर कैसे कम होता है? व्हाट इज फियर? सो लाइक आई कवर्ड इन द बिगिनिंग दैट यू हैव टू, देयर इज नथिंग लाइक रिस्की और दिस थिंग. इट्स ओनली whether you are qualified to do that task. अभी यहाँ पे किसी को बिल्डिंग से जंप मारने को बोलोगे तुम नहीं मारोगे, लेकिन जिसके पास वो जंप सूट होगा और उसको थोड़ी बहुत आती होगी पैराग्लाइडिंग, वो मार जाएगा जंप और खोल देगा अपना शूट और नीचे आराम से लैंड करेगा मस्ती में, है कि नहीं. ही इज ट्रेन्ड फॉर इट. सो नेवर यू विल बी गिवन अ थिंग व्हिच यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर. बट if a need arises and you have to put your life at risk, you should be able to do that. That kind of balance you should have, that kind of risk taking ability you should have. So many people will not go in the for a risky thing like para jumping or deep sea diving, because they will feel it's risky. क्यों करना है? But a person will go for the sake of adventure someone. But in armed forces you go for the sake of duty, कि हाँ ये जरूरी है तो करना पड़ेगा, उसमें लाइफ की रिस्क होगी तो भी मैं करूंगा, बिकॉज इसका जो रिजल्ट मिलने वाला है वो कहीं ज्यादा बड़ा है मेरी खुद की लाइफ से. सो दैट काइंड ऑफ रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज ऑल्सो चेक्ड. ठीक है, वो ट्रेनिंग के टाइम पे भी चेक करते हैं. ट्रेनिंग के टाइम में चेक करते हैं. आपको स्विमिंग पूल से ऊपर से कूदने को बोलेंगे 10 मीटर से. सो दैट 10 मीटर जंप इज योर चेकिंग योर एबिलिटी टू टेक रिस्क. दैट यू नो दैट यू विल फॉल इन द वाटर, यू विल नॉट डाई, बट is your fear overpowering you or you are able to overpower fear and jump? Okay, that is the thing. Now simple example, जैसे बालाकोट बोला तो वो उनको पहले से पता है कि पाकिस्तान वाले उड़ रहे हैं वहां पे, पकड़ेगा तो मिसाइल ठोक देगा. ठीक है. Now are you ready to take that risk? Once you are ready to take that risk, then you will plan कि हाँ ये हो सकता है, मुझे बचना कैसे है. That is the whole training about. Okay, these are the things which they check in some ways. Like GTO में बोलता है ना कि अब यहाँ से आपको वहां जाना है, ये डंडा लेना है, वो लेना है. अगर डरेगा कि इसमें गिर सकता हूँ, वैसे ही नहीं करेगा, है ना. बट यू विल मेक ए प्लान, टेक द रिस्क एंड टेक द टीम अहेड, इजंट इट? है कि नहीं? सो दीज आर मोटा मोटा. आई एम नॉट आंसरिंग योर क्वेश्चन डायरेक्टली बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट आंसर टू क्वेश्चंस. ओके, आई विल गिव यू द ब्रॉड ओवरव्यू व्हिच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि भाई मामला क्या है, कारपेट कैसा है. कोई ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है या ऑब्जेक्टिव फील्ड नहीं है, ये सब्जेक्टिव है सब कुछ, है ना. What about your reason to join forces? Why not after when I was in 11th 12th, no, I looked back at my school days and I saw that I had enjoyed it thoroughly. It was a boarding school. I was with my friends by the beach side. Nobody to point a gun के भाई पढ़ाई कर ले. I used to study on my own whatever I had to study. There was organized games. 3 टाइम खाना है मस्त, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है. तो दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट आई लाइक्ड, दैट भाई लोगों के साथ है, मस्त है. ठीक है, सीनियर है, जूनियर है, सब लोग हैं, एक्टिविटी है, एक डिसिप्लिन रूटीन है. ठीक है. देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. देयर आर कॉम्पिटिशंस, गेम्स विच आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस कंपेयर टू द एग्जाम्स एंड स्टडीज. सबको बराबर वो है इंपॉर्टेंस. आई लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग. And I had basic exposure to what the colleges are offering outside. तो उनका मैं पर्सपेक्टिव देखता था. They were into कि हमको इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग करके कहीं जाना है, पैसा कमाना है. This was totally out of my radar. मतलब I knew कि हाँ पैसे वैसे कमाने हैं, वो तो सर्वाइवल के लिए है, बट आर्म फोर्सेस में भी तो मिलते हैं ना वो भी. So this life, the way of life which I was enjoying, I could see that it's guaranteed in Indian Armed Forces.
also whatever history and things I was studying, whatever kind of teachers were there and principals and all those people were from army and all. So I felt connected to the country and had a basic desire to be there at the forefront where nobody can come and harm, because जो भी ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कोई भी आया मार के चला गया, फटका लगा के चला गया, तो दैट काइंड ऑफ थॉट वाज देयर कि ऐसे कैसे कोई आके मार के जा सकता है, ऐसे कोई आके उंगली कर सकता है फालतू में. तो दैट आइडेंटिटी, वंस यू आर आइडेंटिफाइड योर विद योर कंट्री और विद योर फैमिली, यू विल आल्सो फील लाइक प्रोटेक्टिंग इट. ओके, तो फैमिली में हमको पता है कि हाँ भाई कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही सेफ कंट्री में रह रहे हैं, बट कंट्री को तो टेंशन है कि उसकी बॉर्डर्स अनप्रोटेक्टेड हो सकती है, कोई भी अटैक कर सकता है, कोई भी कुछ हो सकता है, एंड दिस इज द टीम व्हिच इज entitled. So I wanted to be part of that team also. So it is a mix of two things. First is that what kind of life I wanted, and second is what my desire was, that how I want my life, what I want to do in my life, what I want to use my time for. है ना, दो चीजें हो गई, समझना है कि रोज का रूटीन कैसा होना चाहिए, अपने को ऐसा रूटीन चाहिए. और दूसरा, अगर मेरे पास टाइम है और मेरे को अपने जीवन में कुछ करना है, तो क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए करना है, कोई इंजीनियरिंग के लिए करना है, या फिर कोई ऐसी चीजें जिससे मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ और उसके लिए ऑलरेडी कुछ वैसे लोग काम कर रहे हैं और मैं उस टीम में जाके ज्वाइन हो जाऊं, है ना. तो ये दो थॉट्स थे. ओके, तो और दोनों थॉट्स इक्वली लॉजिकल थे और बहुत ही डेस्परेट भी नहीं थे. लाइक आई टोल्ड यू दैट आई हैड जॉइन्ड द इंजीनियरिंग कॉलेज, and that is something which might have helped me in passing third time, because first two times I was like do or die, इसमें तो पास होना है, नहीं हुए पास. तीसरी बार में उसने मेरे से पूछा कि भाई इसमें पास नहीं होता क्या करेगा, मैंने बोला मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ ऑलरेडी, इंजीनियरिंग करते रहेंगे, बाद में ट्राई कर लेंगे, है ना. सो दिस इज अगेन ए एस्पेक्ट ऑफ बैलेंस, के नौकरी लड़की ये सारी चीजें ऐसा है कि भाई है तो है, दोनों तरफ से होना चाहिए ना, दोनों पार्टी को चाहिए ना कि भाई चाहिए, कि वन साइडेड लव स्टोरी तो नहीं चलेगी ना, कि भैया मुझे नौकरी में रख लो, सामने वाला बोलता है भाई मुझे तो तू नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, रोते रहोगे. आपको अपना स्टैंड बाई तो चाहिए ना, कि भाई आप इंजीनियरिंग कर लो या फिर मेडिकल कर लो या फिर एमसीए कर लो या कुछ और कर लो. ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैंने बोला कि इट्स नॉट 100% गारंटी दैट यू डोंट हैव इट, दैट्स व्हाई यू आर नॉट सिलेक्टेड. इट्स जस्ट ए प्रोबेबिलिटी दैट डे वाज नॉट गुड, वो चाय पी के नहीं आया, या फिर आप लोगों ने उस दिन नहीं था ऐसा कि यू कुड डेमोन्स्ट्रेट योर बेस्ट, मे बी देयर वर 5 मोर पीपल हु वर मच बेटर देन यू वर देयर इन योर ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, देयर कैन बी एनी वेरिएबल. सो यू बी बैलेंस्ड, यू कीप ट्राइंग, have this as one of your option, but have all the options, very sincere options, कि मेरे को sincerely कर रहा हूँ मैं इसके लिए, I'm giving my best, हो जाओगे पास, और नहीं हो तो भी कोई बात नहीं. मैं तो ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे अहमदाबाद में बहुत सारे 10-20 लोग हैं, और उनमें से कई लोग जाना भी चाहते थे. तो अभी वो अभी मैं उससे कल ही मिल के आया अपने दोस्त से, उससे बोले पहली बार मैं गया था देहरादून, दूसरी बार मैं गया वाराणसी, और दूसरी बार जब मैं नहीं हुआ सिलेक्ट, तो मुझे लगा कि अभी इन लोगों को मेरी जरूरत नहीं है. तो see, he had that attitude even at that time. Once he failed, he came out. बोलता मैं देखा कि इनको शायद मेरी जरूरत नहीं है, और तीसरी बार मैं फिर से रिटर्न में पास हो गया था एनडीए के, लेकिन मैं गया नहीं. मैंने क्यों, बोलता मैं निर्मा में एडमिशन हो गया था, मैं कर रहा था निर्मा में पढ़ाई करता था, मैं 2 बार ट्राई कर लिया, शायद इनको मेरी जरूरत नहीं है. तो नो हार्ड फीलिंग्स कि भाई तुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं. कि प्रपोज किया लड़की को, लड़की ने बोला भाई अभी जरूरत नहीं है तेरी, अपने पास कोई और है, बेटर बॉयफ्रेंड है, तो ठीक है भाई एंजॉय उसके साथ, हम कुछ और ढूंढ लेंगे, तो क्या माथा मारना है. तो दैट काइंड ऑफ डेस्परेशन शुड नॉट बी देयर, ऑपरेट इन लाइफ विद बैलेंस, ठीक है. क्योंकि फौज में भी ऐसा होने वाला है, आप जो चाहोगे वैसा नहीं होने वाला है, हर 2 साल में आपकी पोस्टिंग यहाँ से वहां कर देगा, कोई चॉइस नहीं है कि मुझे ये करना है. जैसे अभी चॉइस है ना आपके पास, इंजीनियरिंग करूंगा, उस सिटी में जाके जॉब ढूंढूंगा और उस कंपनी में ढूंढूंगा, और काबिलियत होगी तो वो कंपनी ले लेगी. लेकिन फौज में ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओगे वो बोलेगा कल पोस्टिंग आपकी लद्दाख, आप किसके पास जाओगे आप माथा मारने के, मुझे तो वहां नहीं जाना है, वहां तो अपन को ढोकला और वो नहीं मिलता है, खाता फाफड़ा. तो ये चॉइसेस है ना, ये चॉइसेस एट द वेरी बिगिनिंग यू शुड राइट साइज इट एंड सी इट दैट इट्स ए ऑप्शन, नॉट ए चॉइस, बिकॉज चॉइस इज ऑल्सो ऑलवेज डेस्परेट, ऑप्शन इज ऑलवेज कॉन्शियस, एंड ऑप्शन इज ऑलवेज वर्कड एट विथ लॉजिक एंड रीजनिंग विच शोज द बैलेंस इन ए पर्सन, ठीक है. So have it, keep it as your option, maybe first option, maybe second option, maybe a good option, whatever you like, maybe a emotional option, but not a desperate option. कि भाई ये खत्म तो खत्म, हम फांसी का फंदा. बहुत सारे फालतू में स्टूडेंट्स कुछ कर लेते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज और उसमें,
वैसी नौटंकी नहीं करने की है, लाइफ इज वेरी प्रीशियस थिंग, ठीक है। मेरे दोस्त को एक बार फाइटर फ्लाइंग में वी हैड ए कॉकपिट ट्रायल, जिसमें ना हाइट देखते हैं, मेजर करते हैं, तो उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा हो रही थी, बोलते हैं, यार कॉकपिट बंद करते हैं, तेरा सिर टकराता, तेरे को नहीं डालेंगे, तो परेशान हो गया। तो उसको आया इंस्ट्रक्टर, ही वाज 15 इयर्स इन एयरफोर्स, बोलता बेटा देख, जान है तो जहान है, ठीक है, क्योंकि जब इजेक्ट करेगा ना तो गर्दन टूट जाएगी, मर जाएगा वहां पे, क्या फायदा है। तो अभी नहीं है मेडिकली फिट, मत रहे, चले दूसरा उड़ा ले, दूसरा जहाज उड़ा ले जिसमें तेरे को मिल रहा है। तो फैक्ट है वो लाइफ का। तो उस समय वो डेस्परेट इमोशनल होते हैं लोग जब कर रहे होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यू हैव टू बी लॉजिकल, यू हैव टू सी इट के कैसे करना है, एंड हैव इट एज ए ऑप्शन। ओके, सो लाइक आई टोल्ड यू, इट वाज ए, मेरा तो इतना मैंने तुमको बताया कि मैं पहले आर्मी के लिए गया, फिर नेवी के लिए गया, फिर एयरफोर्स के लिए गया, और वो भी चॉइसेस कैसे ली थी कि हाँ ज्यादा सीट्स हैं इसमें चले जाते हैं वैसे। तो इट वाज एक्चुअली ऑप्शन, बट वी गेट इमोशनली कनेक्टेड कि पहली बार कर रहे हैं तो इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे सब कुछ होगा, लाइफ बहुत बड़ी है। वो देखो, वो मेरा एयरफोर्स भी खत्म हो गया ना, 20 साल पूरे हो गए, दे वर फैंटास्टिक नो डाउट, बट आई एम सेइंग दैट आल्सो एम्स, वो भी खत्म हो जाता है, और उसके बाद अभी भी जो लाइफ है वो भी एक्साइटिंग है, उसमें भी अपनी मस्ती है, अपनी चीजें हैं, है ना। तो वैसे है, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड करियर, नो डाउट अबाउट इट, है ना। कि यार ship pilot. I have a airline transport pilot license, but I have chosen not to fly as of now. And I have applied, but I am still not sure that I will fly or not. Transport pilot, different from ship. See, there are three types of license broadly. इससे ज्यादा भी होंगे। एक है प्राइवेट पायलट लाइसेंस, कि आप अपना जहाज लेकर उड़ा सकते हो। एक है सीपीएल कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जिसमें आप सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट उड़ा सकते हो, ठीक है। एक है एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस, जिसमें आप एयरलाइन के जहाज उड़ा सकते हो, जहां पे आपको पीछे बैठा के 200 300 400 लोग ले जाने, बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, वो उसको एटीपीएल बोलते हैं, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। तो इन दिस सीक्वेंस दे आर, सबसे नीचे होता है पीपीएल, उसके ऊपर होता है सीपीएल, उसके ऊपर होता है एटीपीएल। सो आई एम एटीपीएल होल्डर, आई एम नॉट यूटिलाइजिंग इट एज ऑफ नाउ। जैसे आपके पास 2 व्हीलर लाइसेंस है, आपके पास 4 व्हीलर लाइसेंस है लाइट मोटर व्हीकल का, और एक आपके पास 4 व्हीलर लाइसेंस है हैवी मोटर व्हीकल का। 4 व्हीलर नहीं होगा वो, उससे ज्यादा भी होगा, है ना। तो दिस इज क्लियर, जैसा मैंने बताया। एनीथिंग एल्स? Sir, Hariichi Patran is Max in the inquiry sheet plates and many pilots expect out cooking that RTNs are obligated to what suggestions will be. What points can it put equal? अरे ये तो यार गॉसिप के लिए न्यूज में मटेरियल है, चलता रहता है न्यूज में, ठीक है। आउटडेटेड एयरक्राफ्ट अभी देखो तो मिग 21 तो जा ही रहे हैं बाहर, उसके अलावा कौन सा आउटडेटेड है। मिग 21 जब तक थे तब तक तो राम कहानी सही थी। अभी कोई यही बोल सकता है कि भाई 32 स्क्वाड्रन्स हैं, 46 होने चाहिए एंड ऑल दैट, है ना। तो उसके लिए कोशिश हो रही है जहाज लेने की। हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स थोड़े से ऐसे हैं कि इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम टू प्रोक्योर एयरक्राफ्ट, वरना एलसीए आ रहे हैं, बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे स्क्वाड्रन्स। आई डोंट थिंक नाउ देयर आर मेनी स्क्वाड्रन्स व्हिच आर नॉट न्यू एंड लेटेस्ट। अभी सब लेटेस्ट है। मिग 29 इज अपग्रेडेड, मिराज इज अपग्रेडेड, Su-30s are going to get upgraded, but they are still very capable. Rafales are there. Jaguar है जो थोड़े पुराने हैं, 6 cons of Jaguar, which have good weapons. Weapons उनके अच्छे हैं. They have got upgrade weapons. Like I told you that for any aircraft, the meat of the matter is what kind of weapons it has. कि कितनी चोट पहुंचा सकता है। भाई कोई भी कैसा भी है, पतला सा आदमी है, लेकिन उसके हाथ में आपने मशीन गन दे दी, तो सामने आप आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को भी भेज दोगे चक्कू के साथ, क्या करेगा वो? तो ये वेपन विच मैटर्स, ओके, कितना दूर गोली मार देगा वो, तो लॉजिकली देखने का है। बाकी सारी तो गॉसिप के लिए है कि हमारे पास ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है और वो नहीं है, तो वो सब तो एयरफोर्स का काम है ना, वो कर रहे हैं ना अपना। गवर्नमेंट का डायरेक्ट सपोर्ट, लड़ाई करनी है उसको अगर एयर में, तो एयरफोर्स से ही करवाएगी ना। तो गवर्नमेंट और एयरफोर्स तो बात कर रही है ना, बाकी पीछे लोग गॉसिप करते रहते हैं, न्यूज़ में चलता रहता है वो। तो इट्स गुड फॉर एंटरटेनमेंट, उसको न्यूज़ वाले को भी अपनी न्यूज़ चलानी है, ठीक है। सो हो गया ना, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ अभी तो स्ट्राइक को, तो देख लिया ना रिजल्ट आपने। और किससे लड़ाई करनी है? पाकिस्तान ही आएगा ना, कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इससे लड़ना है। तो चाइना है, तो चाइना से डिफेंसिव वॉर होगा हमारा ज्यादातर। जैसे पाकिस्तान हमारे साथ करता वैसे हमें करना होगा। और चाइना के साथ पंगे ले कहाँ रहे हैं हम? ना चाइना उतना बदतमीज है पाकिस्तान की तरह, ना हम उससे पंगे लेते हैं ज्यादा। अपना ट्रेड ज्यादा है चाइना के साथ, और चाइना से अगर कोई स्कर्मिश होती भी है तो वी हैव एडिक्वेट डिफेंसिव एबिलिटी। डिफेंसिव मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसको उतना डैमेज पहुंचाने के लिए कि भाई
उसको प्रॉब्लम होगा। जिस तरह से हम अपनी इकोनॉमी के लिए चिंतित है, वैसे चाइना भी चिंतित है। सो दीज काइंड ऑफ स्कर्मिशेस, जो नैरेटिव में आपको दिखता है पाकिस्तान के साथ जितना दिखता है उतना चाइना के साथ दिख रहा है क्या? जो पाकिस्तान के साथ इतना ज्यादा दिखता है फिर भी लड़ाई नहीं हो पाती है ठीक से, 3 दिन पूरे नहीं हो पाते हैं, 3-4 दिन। तो चाइना के साथ जहाँ पे वो चाइना खुद बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट का है कि उसको भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है और हमको भी अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना है, तो क्यों लड़ाई करेंगे? और लड़ाई के लिए कुछ सॉलिड रीजन होना चाहिए ना, जो रीजन है उसको डिप्लोमेटिकली अभी हैंडल हो रहा है। तो whenever we have to engage with the foreign countries, there are two ways. First is diplomacy, second is military. That is soft tool and this is hard tool. Okay? The China के साथ this diplomacy is working fine. Military diplomacy and military action is not needed. वो उसको करना होगा तो ताइवान से हैंडल करेगा, पहले ताइवान से उसको पंगा है जो वो सॉर्ट आउट करेगा। यू डोंट अंडरस्टैंड चाइना फर्स्ट। ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, हम गॉसिप ज्यादा करते हैं, न्यूज में जो चल रहा है उसमें। We don't do our research more. Once we do our own research more into things, then you will understand. You will understand China more. China की geography कैसी है, China के interests क्या हैं, China को कितना इंटरेस्ट है इंडिया में, कौन से एरिया में इंटरेस्ट है, क्या चाइना के अभी जो इंटरेस्ट है उसमें इंडिया की टेरिटरीज कहाँ फॉल करती हैं, आर वी अबव ताइवान? अगर वो ताइवान से नहीं पंगे ले रहा है या ताइवान के साथ नहीं कर रहा है कुछ, तो हमारे साथ क्यों करेगा भाई? ठीक है, पाकिस्तान के साथ तो डिफरेंट स्टोरी है उसकी, तो दोनों की बहुत ही अलग डायनेमिक्स है। ठीक है, so it's all right, we have good I mean strength is good and it will grow only, and things are also evolving gradually. ठीक है, So, when it's trying to know how to life experiences, we all have some threats or beliefs which are very deep rooted in us. And there comes some situation or events in your life and during your service, which, change your perspective or the way you think about it. Was there any such incident during your service? ये fears and all, fear की one word definition of fear is that fear is something which comes because of a thing which you are not familiar with it. So the good part about armed forces is that they expose you to new things at a gradual pace. Deep rooted fears, they are beliefs. deep rooted beliefs. मेरे को ऐसा लगता है कि I was quite chilled out with things. Whatever is very deep rooted and I am aware of it that it is hindering my requirement or what I want to do, then I'll work on it. But I don't think ऐसा कोई deep rooted belief है जो कि belief तो itself is created by your own self. तो जितना deep rooted है उसको थोड़ी मेहनत करके तोड़ना पड़ेगा। तो ये deep rooted belief मतलब if you specify in which sense, in terms of fear, in terms of choices in life or something else, then no, I don't think ऐसा वो टूटता रहता है धीरे धीरे। सो डीप रूटेड बिलीव्स जो होते हैं ना, वो यू फ्रॉम योर एंड मे बी आस्किंग कि भाई मुझे ये करना है या ये करना चाहिए, उस तरह से अगर पूछ रहे हो तो I had consciously kept it to a level where you are not hurt, because belief जो अपने होते हैं ना वो हमको ही चोट पहुंचा सकते हैं फालतू में कि मुझे ऐसा करना है, मुझे यही चाहिए। So that's what I was explaining, the difference between choice and option. So if you are option minded, then your beliefs will fall apart. If you are very choice oriented, then belief का फिर belief खेल कर रहा है अपने अंदर, है ना? So I don't think ऐसे कोई मेरे को ज़्यादा वो प्रॉब्लम आई है, लेकिन इंटरपर्सनल रिलेशंस में आपको दिखता है कि आपके बिलीव्स कई बार दूसरों से हिंडर कर रहे हैं, लेकिन वो भी डिस्कशन से टूट जाते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड के एबिलिटी टू ऑपरेट इन ए टीम, क्योंकि आपके जो डीप रूटेड बिलीफ होंगे वो आपको करने में मजबूर करेंगे ना, दूसरे से बहस करवा देंगे या फिर उसके वर्क मेथोडोलॉजी से आपको डिफरेंस क्रिएट करेंगे। आप बोलोगे तो बहुत कैजुअल है यार, मेरे को तो ये थोड़ा सीरियस सिंसियरली चाहिए इसको काम को, बोलेगा नहीं मैं तो चिल्ड आउट होकर कर सकता हूँ, ऐसे ही करूंगा मैं। If you are so rooted in your belief, नहीं होगा तो ऐसा ही होगा सुबह 4 बजे, वो बोलेगा नहीं यार मैं तो 9 बजे उठ के ही करता हूँ। Then you have to think, क्या हो जाएगा 9 बजे भी अपना एम अचीव हो जाएगा? ठीक है, तो सिविल में काफी आराम से कर सकते हैं, लेकिन मिलिट्री में और कंस्ट्रेंट फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि 100 लोगों को अगर आना है तो 4 बजे और एक बंदा बोले कि नहीं मैं 9 बजे आऊंगा, तो फिर उसको आउट करना पड़ेगा। तो उसका अगर डीप रूटेड बिलीफ है 9 बजे के काम का, तो उस तरह का, तो ये बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं डीप रूटेड बिलीफ्स या फिर डीप रूटेड चॉइसेस। दैट्स व्हाट आई फील, आई केप्ट इट लिटिल लूज इन मी। जब भी दिखे उसको तोड़ देने का है, लाइफ में भी, नॉर्मल भी, एज ए सिविलियन ऑल्सो, एज ए नॉर्मल पर्सन ऑल्सो।
डीप रूटेड बिलीफ किसी काम के नहीं है, बिलीव ये सब मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। मैं सोचता हूँ ऐसा बाकी आपको जैसा सोचना है सोच सकते हो। So I think we had a good session, long. We can should not stretch it much. If there is any last question, we can or something. यार अभी तो प्रिपेयर कर रहे हो ना, एसबी के लिए जाते हो तो प्रिपेयर करो अपना और जाके मस्त देकर आने का, बिंदास, चिंता नहीं करने की। प्रिपेयर कर सकते हैं हम बेस्ट, वी कैन प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड अवेयरनेस के साथ वी कैन डू आवर बेस्ट। रेस्ट लाइक आई सेड इट्स ए thing which comes out, it's a competitive also, and it's also that it's not the only thing in life. Try for it, but always have options रखने हैं खुले, desperation के साथ नहीं जाना है। कोई कह नहीं सकता कि पास होगा फेल होगा, ऐसा वो नहीं है। तो my thing is just go free minded and apply and keep your second option also always, and work hard for everything, दोनों के लिए, ठीक है। So last one, how to fake it English? It's China mother language. Because it leads to the it leads my See, English language is just a tool to express yourself. So most of the interviews happen in English. That's why this question comes. If you want to consciously improve your English, then best is to read newspaper, read English books, and watch English news, watch English movies, read subtitle and listen to English accent, and try to speak, talk, do public speaking, engage in English. Because I also improved on my English gradually only after joining school. Once I started talking in English in my leadership roles, when I used to talk to juniors and all, then only English improved. It improved very. Lot of work was also in the English classes. That whatever was taught by the teacher, I used to pick up English words and use them in my written answers, many new English words. And once you ideate, use the words and write, then sometimes in your vocabulary also it will come and it will improve. So it is a work. Because घर पे तो सब हिंदी में और गुजराती में या फिर पंजाबी में बात करते हैं ना, तो उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत लगाया था। The thing which helped me that I was school captain or some leadership roles, so I used to talk to others in English a little bit. तो उससे हेल्प हो जाती है। बट मेजर इंप्रूवमेंट हैपन इन इंडिया वेयर इट वाज ऑफिशियली एवरीबॉडी यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश। हमारे स्कूल में ज़्यादा नहीं बात करते थे अंग्रेजी में, गुजराती थे सारे, तो गुजराती चलती थी ज़्यादा। what's the call sign? कॉल साइन चेंज होते रहते हैं यार हर उसमें। फेवरेट बुलडॉग 9th कॉन में वाज माय फेवरेट, सेबर इन 7th कॉन, दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच आई लाइक, या तो वो चेंज होते रहते हैं हर उसमें। शैंपेन भी था कभी। ठीक है गाइस, विल कैच अप अगेन। हाँ, if you have any thing more to ask and understand how the life in Air Force is, then we can talk, because that can be a different altogether session and a lot of it can be discussed. But at your level, you will be more keen on how to join the armed forces and how to crack the exam. That's also good. Never be too focused and have options. ठीक है, all the best. Take care. चलो, take care. See you.